हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का शुरू करने वाले हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, so reproduction in plant, the chapter tells you that what are the things we are covering in this chapter. Means first of all we will see reproduction. What is reproduction? Okay, then we will see mode of reproduction. Then we will see reproduction plants में कितने टाइप से होता है. We will see कितने टाइप से reproduction plants में होता है. Sexual reproduction क्या है, asexual reproduction क्या है, vegetative reproduction क्या हो, vegetative propagation क्या होता है. I'm sorry for that. We will see about types of reproduction first. Okay, sexual reproduction and asexual reproduction क्या होता है. Okay, then we will see vegetative propagation क्या होता है. Okay, then we will see कि जो seeds वगैरह है plants की वो कैसे disperse होते हैं. ठीक है, कौन कौन से agents होते हैं जिनकी वजह से ये plants के जो seeds है they can travel from one place to another place. ठीक है, means हम in depth में पूरा का पूरा देखने वाले हैं. सबसे पहले पूरे plants के part, प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, रिप्रोडक्शंस कैसे होता है, फर्टिलाइजेशंस कैसे होते हैं प्लांट्स में. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें. ओके, ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट, मेन पॉइंट्स बताए कि ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर होने वाला है बहुत मजेदार, तो प्लीज इस चैप्टर को पूरा का पूरा देखिएगा. तभी देखिए, एक बार आपने देख लिया ना, आपको प्लांट्स में क्या किस तरीके का प्रोसेस पूरा फॉलो होता है आपको कभी नहीं भूलेगा. आई नो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर जरूर है, बट यू कैन गेट ऑल द थिंग्स क्लियर बाय रीडिंग दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज द चैप्टर नेम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. टू प्रोड्यूस इट्स काइंड is a characteristic of all the living organisms. Of course, अपनी जैसी ही to produce its kind is a characteristics of all the living organism. देखिए, हमेशा जिस तरीके से उसका पेरेंट होता है उसी तरीके का उनके बेबीज होते हैं. ठीक है, चाहे वो बर्ड का बेबी हो, चाहे किसी डॉग का हो, चाहे किसी ह्यूमन बीइंग का हो. ओके, all the processes of life help an organism to stay alive. Of course, all living things have limited lifespan after which they die. So in order to continue the species, each organism make more individual of its own kind. देखिए, हर इंसान एक बार when they born उसको कभी ना कभी मरना है. इसकी वजह से उनकी स्पीसीज कभी भी एक्सटिंक्ट ना हो पाए, इसलिए दे रिप्रोड्यूस देयर सेम काइंड, इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, the production of new individual from their parent is known as reproduction. जो we can say production करना एक new individual का, वो भी किससे, उसके parent से, is known as reproduction. So reproduction is a process by which a species propagate. It's important. Okay, so अगर कोई पूछे what is reproduction, so you can write this definitions. Reproduction is a process by which the species propagate. It is essential process with respect to continuity of life. ये हमारी लाइफ में continuity बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन होना. It is the means of multiplication and perpetuation of the species. बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, now we will see mode of reproduction. होता कौन कौन सा है, किस किस we can say type of reproduction, mode of reproduction is the same one. सबसे पहले there are two types, asexual reproduction and sexual reproduction. So we will see what are these all things. Starting with the first one is asexual reproduction. सबसे पहले asexual reproduction है. So in asexual reproduction, a single parent is able to reproduce of its own kind. यहाँ क्या single parent है, they do not have male and female, single है ये. Like this plant we can see. ठीक है, इसमें ही we can see stigma, style, ovary, everything is here. Okay, so ये वाला we will see in asexual reproduction, a single parent is able to reproduce of its own kind.
gametes are not formed and so there is no union of gametes. इसमें कोई gametes नहीं होता. Common form of asexual reproduction is budding, fusion, fragmentation and spore formation. अभी एक एक को हम देखेंगे. पहले आप ये समझिए asexual reproduction क्या होता है. इसमें सिंगल पेरेंट होता है, मीन्स इसमें जिस तरीके का पेरेंट होगा उसी तरीके का उसका बेबीज होगा, बट यहाँ पे सिंगल पेरेंट इज देयर. दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके एग्जांपल्स है बडिंग. बडिंग से जो प्रोसेस होता है, इससे क्या है, एक ही सिंगल पेरेंट है और उससे रिप्रोड्यूस हो रहा है. बडिंग भी यही है, फ्यूजन भी यही है, फ्रेगमेंटेशन भी यही है एंड स्पोर फॉर्मेशन भी इसी का एग्जांपल है. It involves simple division of the plant body into the two and more plants or the formation of spores under unfavorable condition, that is harsh environment condition which are not suitable for the plants to survive. Now we will see sexual reproduction क्या होता है. It take place by the formation of seed. They develop from the zygote formed by the fusion of male and female gametes. ये सीड बनता है और ये सीड कैसे बनता है, जाइगोट बनता है इसमें, और वो किससे बनता है, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन से. मींस मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं दे फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, इन दिस केस टू मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर नीडेड टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. इससे क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों की हेल्प से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड होता है. असेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्विंग इन दैट. But in sexual reproduction, both the parents are required to give a new child. Okay, so ये तो basic difference हमें पता चल गया, पता लगा. Now we will see budding in yeast. अब budding क्या होता है yeast में, किसमें, yeast में. We will see in this picture. देखिए पहले मैं पिक्चर से आपको बता देती हूँ. ये देखो, आप देख पा रहे हो, इसमें क्या है, पेरेंट एक ही सेल है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है. अब देखो फॉर्मिंग एक बर्ड बना देगा. बडिंग ही बर्ड से बन गया और ये बर्ड अब अलग हो गया, पेरेंट बॉडी से अलग हो गया. और देखो पेरेंट बॉडी एंड जो इसकी जो बर्ड वाली बॉडी है बिल्कुल सेम है. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि वो बिल्कुल पेरेंट की कॉपी रहता है. जब भी कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी फॉर्म होता है बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी अपनी पेरेंट की होता है. वो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इट्स नॉट सेम कि हम, अब जैसे मेरा फेस है वो ऐसा तो नहीं है मेरे बिल्कुल पापा और मम्मी जैसा बिल्कुल सेम फेस होगा, नहीं ना, डिफरेंट होता है ना. कुछ कुछ फीचर सेम होते हैं हमें बट वैसे तो डिफरेंट है. बट इस प्रोसेस में बिल्कुल सेम कॉपी निकलता है. ठीक है, सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअल बाय बडिंग. तो यीस्ट देख रहे हो, ये रिप्रोड्यूस हो रही है विद द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बड बन के निकल रहा है. In this process, a small bud-like projection comes out from the parent plant. इसमें क्या एक बड निकलता है, किससे, पेरेंट से एक छोटा सा बड वहां से निकलेगा. ये किसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, यीस्ट का. ओके, इट इज कॉल्ड बड. इसी को बड बोलते हैं. बड मतलब कली टाइप की हम समझ सकते हैं अगर हम प्लांट्स के उस कॉन्सेप्ट में देखें. द बड ग्रेजुअली ग्रो and get separated from the parent cell and form a new yeast cell. ये क्या धीरे धीरे करके ये पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा. आप यहाँ देख सकते हो ये अलग हो गया. ये देखो कैसे चेन ऑफ यीस्ट सेल फॉर्म हो गया. अब ये डॉटर सेल ये अलग हो गया. अब पेरेंट सेल से ये धीरे धीरे करके अलग हो जाएगा और अपना खुद का एक यीस्ट सेल बना लेगा. The new yeast cell grow mature and produce more yeast cell. अब वो ग्रो होगा, फिर उसमें से बडिंग होगी, फिर उसमें से ब्रीडिंग होगी. तो ये उनकी स्पीसीज क्या है, रिप्रोड्यूस होती जा रही है इन द असेक्सुअल मेथड को फॉलो करते हुए. In this process continue for some time, a large number of yeast cell are produced in a short period of time. इससे आप देखो कि काफी लंबे yeast cell डेवलप हो जाते हैं, वो भी कभी काफी कम समय में. Let us perform an activity to observe the yeast. अब आप ये एक्टिविटी you can do by yourself. ठीक है, या फिर आपको स्कूल्स में कराएंगे आपकी लेबोरेटरीज में. ओके, नाउ वी विल सी. आपको बडिंग समझ में आया, बड डेवलप होती है, यीस्ट डेवलप होती है विद द प्रोसेस ऑफ बडिंग. नाउ वी विल सी बाइनरी फ्यूजन क्या होता है. बाइनरी मींस यहाँ पे पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया यहाँ. ठीक है, आप देख सकते हो 2 डॉटर सेल बन गए यहाँ पे और वो भी बिल्कुल सेम कॉपी अपने पेरेंट की. बाइनरी मींस ही 2 होता है, बाइनरी. ओके, सो यहाँ पे पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 1 and they become 2 daughter cell. Okay, so by the picture we can see parent cell, nucleus divide हुआ, cytoplasm divide हुआ, then उसके बाद 2 daughter cell बन गया. This
Image is very important. When this question is in your exam, write a binary fusion or the method of binary fusion. Just draw this diagram also. Okay. First, in the first, you can write this is a parent cell. Then we will write nucleus is dividing. Then we will say cytoplasm is dividing. Then a two daughter cell is formed with the help of binary fusion. ओके, लेट्स सी अब इससे कौन से ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड होते हैं. जैसे बडिंग से तो ईस्ट ही हो रहा था, अब ये बाइनरी फ्यूजन से कौन डेवलप होता है. लेट्स सी. In this type of fusion, one cell produce into two separate cell. So यहाँ पे एक सेल कितने सेल में डिवाइड हुआ बेटा? टू सेपरेट सेल में. Binary fusion is a form of asexual reproduction and cell division used by all the prokaryotes. Example, bacteria, amoeba and some organ cells with eukaryotes organism like mitochondria. ये सब में आपको मिलेगा बाइनरी फ्यूजन. चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें या अमीबा की बात करें, इनमें आपको मिलेगा क्या? बाइनरी फ्यूजन. एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होगा. ओके. The consequences of asexual reproduction is that all the cells are generally identical. That is, they have the same genetic material. अब इसमें asexual reproduction में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम रहता है. जैसे अगर आप ही बात करें, आप लोगों का जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, बट फीचर्स एंड ऑल द अपीयरेंस आर टोटली डिफरेंट. बट इसमें पूरा का पूरा डिटो कॉपी रहती है. ठीक है. नाउ वी विल सी थर्ड एग्जांपल, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. बडिंग क्लियर, बाइनरी फ्यूजन क्लियर. नाउ थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन. लेट्स सी व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन. Fragmentation is commonly found in green algae. Green algae में आपको मिलेगी ये रहा. Okay? In algae, the filament just breaks into two or more fragments by the force of wave, wind and rain. ये क्या होता है? ये फ्रेगमेंट दो तीन फोर्स में डिवाइड होती है. विंड, रेन की वजह से ये डिवाइड हो जाती है. Each of these fragments grow up to form a new filament. अब क्या है? विंड एंड रेन की वजह से ये डिवाइड हो गए. अब ये न्यू, देखो आप ये देख रहे हो ना, ये एक था, ये डिवाइड हो गया. अब ये अलग अलग डेवलप्ड होगा. ओके. सो ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो अप टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट. दिस प्रोसेस इज सीन इन स्पाइरोगायरा. पॉन्स्टम, ये स्पाइरोगायरा में आपको मिलता है देखने के लिए फ्रेगमेंटेशन. ग्रोइंग टू द स्टेगनेंट वाटर. सो ये कहाँ पे ग्रो करता है? स्टेगनेंट वाटर में ग्रो करता है. सो ये भी आपको क्लियर हो गया. जस्ट उसी की तरह है. ठीक है, कि किस तरीके से सेम पेरेंट कॉपी में दे रिप्रोड्यूस्ड. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ वन है हमारा क्या चीज? स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर. सो व्हाट्स दैट? तो स्पोर्स आर द टाइनी स्फेरिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडी. सो स्पोर्स क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें. किसमें? स्पोर्स में. दे हैव अ थिक वॉल टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन. देखिए इसके ना ऐसे थिक वॉल होती है. ये रहा, देख रहे हो ये? So they have the thick wall ताकि ये extreme condition से ये बचे रहे. The spores develop in a structure called porasium. क्या कहेंगे? Porasium. Okay. Mature spores floating in the air. देखिए क्या होता है? ये स्पोर है, मतलब आप समझ लीजिए मतलब एक ऐसे बॉल टाइप की है, समझ लीजिए आप. बैलून समझ लीजिए. आपने सोचे उसके अंदर बहुत सारे वो डाले हुए हैं, डालते हैं ना जो बर्थडे पार्टी में जब हम ब्लास्ट करते हैं, वो सारे चमकीले चमकीले ग्लिटर डाले हुए हैं. समझ लीजिए ग्लिटर डाले हुए एक बैलून में, और वो बैलून बर्स्ट हुआ, एकदम फटा, तो ग्लिटर सारे हवा में फैल जाएंगे ना. इसी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है. जब वो फटता है, इसके जो सीड्स है और वी कैन से जो इसके पेरेंट सेल है, ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है? वी कैन से बहुत सारे इनके species they can form by this process. Okay, so mature pores keep floating in the air since they are tiny and very light. They can form a long distances. They can travel in the air for long time. इनके जो pores होते हैं छोटे छोटे, वो काफी दूरी तक ऐसे तय कर देते हैं. Okay, क्योंकि जब ये pores mature हो जाते हैं तो ये burst हो जाते हैं. ठीक है. अब इसके जो सीड निकल के आसपास की जगह सब जगह चले जाते हैं. ठीक है. तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. नाउ वी विल सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लेट्स सी. रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. इंपॉर्टेंट. प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं जिससे वी कैन से कि एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है? वी हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स.
In vegetative propagation, new plant are produced from root, stem and leaf. देखिए इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से एक न्यू प्लांट आप ग्रो कर सकते हो, और वो भी किसकी हेल्प से बेटा? रूट की, स्टेम की एंड लीफ की हेल्प से। ये तीनों की हेल्प से आप ग्रो कर सकते हो। All the plant produced by vegetative propagation from one plant are exact copies of the parent plant and have same genes। देखो इसमें भी सेम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, कि अगर आपने स्टेम के रूट से किसी न्यू प्लांट को लगाया है, वो बिल्कुल सेम कॉपी होगा अपने पेरेंट की, सेम कॉपी होगा, इनफैक्ट आप उनके जीन्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आप ग्रो करेंगे चीज, क्योंकि वी नो कि रूट, स्टेम एंड लीफ वो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, उससे आप कोई भी चीज ग्रो करोगे वो बिल्कुल सेम ग्रो होगी। ठीक है, सो पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, दहलिया, बनानास, गार्लिक, मिंट, ग्रेप्स, हैंड रोज आर ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बेटा यहाँ पे बताए हैं। ये सारे के सारे प्लांट्स बेटा ग्रो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से ही। There are a number of natural as well as artificial or man-made method of vegetative propagation। बहुत सारे natural and man-made methods होते हैं vegetative propagation के। Let's see natural method of vegetative propagation। Now my dear children, we will see about natural methods of vegetative propagation। कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से natural methods हैं जिसकी वजह से vegetative propagation किया जा सकता है। Let's see natural methods of vegetative propagations are possible by the different parts of the plant as well as follow। देखिए कौन कौन से पार्ट्स के, प्लांट के पार्ट से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम रूट से, रूट का देखते हैं, क्योंकि हमने तीन चीजें पढ़ी थी, या तो रूट होगी उसमें, या तो स्टेम होगा, या तो लीफ होगी, यही तीन चीजें हो सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रूट से देखते हैं। सो न्यू प्लांट ग्रो आउट ऑफ swollen modified roots called tubers। Birds develop at the base of the stems and then grow into a new plant। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आपने रूट उगाई, ठीक है, रूट को आपने उगाया, अब रूट से क्या होता है, यहाँ पे एक बड डेवलप हुई, बड डेवलप हुई और बड से ये न्यू प्लांट डेवलप हो गया। सो वी कैन से न्यू प्लांट ग्रो बाय द swollen modified roots called tubers। जो रूट्स होती है उसको क्या कहते हैं, ट्यूबर्स। Buds develop at the base of the stem। यहाँ पे ना स्टेम के बेस में बड डेवलप हो जाती है, बड मीन्स कली टाइप की। सो बड डेवलप एट द बेस ऑफ द स्टेम्स एंड देन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और इससे क्या होता है, एक न्यू प्लांट ग्रो हो गया। देख रहे हो, आपने रूट लगाई, रूट के बाद स्टेम हुई, स्टेम से बर्ड निकला, बर्ड से एक न्यू प्लांट ग्रो हो गया। ओके, एग्जाम्पल इज दहलिया। सो ये प्लांट है जिससे वी कैन से, जो इसी प्रोसेस से ग्रो करता है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली दे कैन ग्रो। Like sweet potato is a modification of adventitious roots। एक sweet potato एक एग्जाम्पल है कौन सी रूट्स का, adventitious roots का। ओके, adventitious roots का। These roots grow from the knots of a running stems and then they are irregularly swollen due to the shortage of food, hence they are called tuberous roots। They are give rise to a adventitious birds which when detached can give a rise a new। ये भी वही बता रहा है कि किस तरीके से रूट से एक बड डेवलप हुई, देन दे कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। सो स्वीट पोटैटो एंड दहलिया इसके एग्जांपल होते हैं जो रूट से डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट ऐसे कौन से प्लांट है जो स्टेम लगाने से डेवलप हो जाते हैं, अगर आपने उसकी स्टेम तोड़ के लगा दी तो दे कैन ग्रो। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं द अंडरग्राउंड एंड सब एरियल स्टेम्स आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। These are the four types of them। सबसे पहले 4 टाइप्स की कौन कौन सी है, लेट्स सी। सबसे पहले हम ट्यूबर के बारे में देखते हैं, वो क्या होता है। सो पोटैटो इज अ अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर दैट इज swollen ड्यू टू द फूड स्टोर इन इट। देखिए ये ट्यूबर जो होती है फूल जाती है, क्यों, ड्यू टू स्टोर फूड, उसमें जो फूड स्टोर है, क्योंकि वी नो पोटैटो तो अंडरग्राउंड लगता है। So potato is underground stem tuber that is swollen due to the food stored in it। It has bud in the depression called eyes। इसकी क्या एक बड होती है, नीचे बड होती है जिसको क्या कहते हैं, आईज। ये देखो इस तरीके की, ये रूट्स है, देख रहे हो, ये इसकी स्टेम्प है, ये शूट है इसकी, है ना। और देखो आप यहाँ अगर आप ओनियन को निकालोगे, आप ओनियन का देख सकते हो, ये रूट्स है, ये स्टेम्प है, ये बड है,
और ये है। तो आप समझ सकते हैं कि ओनियन एंड पोटैटो ये स्टेम से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप पोटैटो में, रूट में, दोनों में देख सकते हो, रूट भी है, उसकी स्टेम भी है एंड शूट भी है। सो जो उसका बड होता है वो उसकी आई होती है। दीज बर्ड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, यही बड एक राइज करता है न्यू प्लांट को। द स्टोर फूड इज यूज बाय द न्यू प्लांट टू ग्रो, ऑफकोर्स जो उसमें स्टोर फूड होता है जो उसके स्टेम में, वो उसको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइजोम्स। राइजोम्स क्या होते हैं? इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है जैसे पोटैटो की है, जमीन के नीचे है, ओके। सो इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम दैट बियर्स बड, जिसमें बड निकलती है। दीज बर्ड्स ग्रो टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, इसी बर्ड से एक नया प्लांट उगता है। राइजोम्स इज फाउंड इन जिंजर एंड टर्निप, ये दोनों जिंजर एंड टर्मरिक किससे ग्रो करते हैं? राइजोम से, ओके। इसकी जो स्टेम होती है इसका नाम क्या है? राइजोम्स। नेक्स्ट इज बल्ब। Bulb is not that bulb, okay. It is a very short underground stem surrounded by the fleshy scale leaves. The scale leaves store food. Bulb is found in onion. Bulb onion में found होता है, क्योंकि ये वाला आप देख सकते हो ना इस तरीके का। In the spring, stem shoot up from the center of the scale leaves to form a new plant. ये देखिए सारे प्रोसेस यही है कि स्टेम से किस तरीके से प्लांट ग्रो कर रहा है। एग्जाम्पल्स हमें पता है, जिंजर भी इससे ग्रो कर रहा है, ओनियन ग्रो कर रहा है, पोटैटो ग्रो कर रहा है, ये इसकी एग्जाम्पल है बेटा, किसके? स्टेम से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मीन्स वो जमीन पे भी है, हवा, मतलब एरियल हवा में है वो। सब लग गया तो मीन्स दोनों में थोड़ा थोड़ा है, मतलब वो अंडरग्राउंड नहीं है, आप ये कह सकते हो आप। इन ग्रासेस, मिंट, ऑक्सिल्स, cycatheniums and strawberries, vegetative propagations occur by the subaerial stem. In them, its roots and aerial branches arises from the nodes, forming the new plant. Okay? इस तरीके से ये natural method है रूट से, किसी भी रूट्स एंड स्टेम से प्लांट को ग्रो करने के लिए। नाउ वी विल सी कैसे लीफ से किसी प्लांट को ग्रो किया जाता है। ओके, सो द एंड वी कैन से बाय एडवेंटिनियस बड ऑन लीव्स। लीव्स में बड निकल जाती है, समझ रहे हो? आपने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसा होता है। ओके, ये देख रहे हो लीव में ये बड निकल गई, देख रहे हो दिस वन। ओके, सो द फ्लैशी लीव ऑफ ब्रोफाइलम, किसकी? ब्रोयोफाइलम। सो वी कैन से ब्रोयोफाइलम्स बियर एडवेंटियस बर्ड्स अलोंग विद देयर मार्जिन, उसके मार्जिन में ये बर्ड्स डेवलप हो जाती है। व्हेन सच लीव फॉल्स ऑन द सॉइल, और जब ये लीव सॉइल पे गिरती है, ईच बड ग्रो इनटू अ इंडिपेंडेंट प्लांट। अब ये ऑफकोर्स ये पत्ती जमीन पे गिरी, फिर इसमें जो बड थी, अब ये बड अपनी एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन के उग जा रहे हैं। ओके, सो प्लांट विद फ्लेशी स्टेम्स सच एज कैकी, वी कैन से कैक्टस कैकी, प्रोड्यूस न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ द पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। सो कैकी प्लांट ग्रो करता है बेटा किससे? लीव से। ओके, जिंजर, पोटैटो, ओनियन ये सब ग्रो करता है स्टेम से, और रूट से तो हमें पता ही है कौन ग्रो कर रहा है, अभी पढ़ा था, कौन था एग्जाम्पल, किसको याद है अभी तक? स्वीट पोटैटो, वेरी गुड। ओके, चलिए। ओके, नाउ वी विल सी एडवांटेज ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। एडवांटेज क्या होते हैं इस मेथड के? लेट्स सी। फर्स्ट, it does not need external agents like insects or wind for pollination and dispersal. देखिए, इसको कोई एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी खुद की बॉडी इज एफिशिएंट एनफ। ओके, नेक्स्ट, फूड इज यूजुअली स्टोर इन अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फूड। इसमें जो फूड है, खाना है, वो वेजिटेटिव पार्ट में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, दिस टाइप ऑफ प्रोपैगेशंस इन्वॉल्व ओनली पेरेंट सेल्स एंड नो फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। इसमें जब पेरेंट सेल चाहिए होती है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती कि मेल फीमेल का इज नो, दैट नथिंग लाइक दैट। इसमें सिर्फ प्लांट, कोई भी प्लांट की रूट स्टेम्स और ये सब लगा देंगे तो वो प्लांट उगाता है, पर वो भी किसका? अगर आपकी जो मैंने ये एग्जांपल्स बताई ये ग्रो करोगे तभी उगेगा, ये नहीं कोई भी प्लांट की आपने स्टेम काट के लगा दी तो लग जाएगी, नो। अब डिसएडवांटेज क्या है इसके, इस मेथड के? लेट्स सी डिसएडवांटेज। So lack of dispersal mechanisms lead to overcrowding. Second,
The new plants are less adaptable to change in the environment condition. जो नया प्लांट उगता है ना वो इतनी जल्दी उस environment में नहीं सेट हो पाता जितना पहला प्लांट हो चुका था. तो ये कुछ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए. ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर. Now we will see artificial method of vegetative propagation. Artificial method कौन कौन से होते हैं इसके? Let's see. So vegetative propagation is a simple, fast and less expensive method of the plant propagation. So ये method सबसे fast, simple and less expensive method होता है. Artificial, अभी नेचुरल पढ़ा था ना कि नेचुरली कैसे हम लीफ से, स्टेम से एंड रूट से प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं. अब ये आर्टिफिशियल मेथड्स है, इसमें कोई नेचुरल मेथड्स का नहीं यूज हो रहा है. तो आर्टिफिशियल मेथड क्यों यूज होगा? सबसे पहले ये सिंपल होता है, फास्ट होता है एंड लेस एक्सपेंसिव होता है. It is therefore commonly used in horticulture and agriculture. ये horticulture और agriculture में ये method use होता है. The techniques used are stem cutting, layering, graftings and tissue culture. तो ये होता है इसमें, ये जो processes मैंने पढ़े हैं ना, ये इसमें आते हैं. किसमें? Artificial method में. अब देखते हैं ये methods होते क्या है. What is tissue culture? What is grafting? What is layering? ये सब क्या है? तो नाम से लग रहा है कौन सा लेयर बनाना है हमें, है ना. तो चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं. स्टैम्प कटिंग. स्टैम्प कटिंग, स्टैम्प काट के लगा दी. ये क्या है? समझ नहीं आए तो आओ पढ़ते हैं. इन दिस मेथड कटिंग ऑफ अ हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग अ लीफ बड इज प्लांटेड टू द मॉइस्ट सॉइल. इसमें क्या है? अच्छे यंग प्लांट की अपने ब्रांच को कट किया, उसको अच्छी वाली बढ़िया वाली सॉइल में आपने लगा दिया. कटिंग डेवलप रूट एंड ग्रोथ इनटू अ न्यू प्लांट. ये स्टेम को काट के लगा दिया तो न्यू प्लांट्स डेवलप. This method is used to propagate like the bougainvillean and cherry, rose and sugarcane. So ये कुछ names है, I know थोड़े से different one है. चैमेलियन, कोई रोज, शुगरकेन. सो इससे ये स्टेम कटिंग से ग्रो कर ले. रोज तो आपने पता ही होगा स्टेम कटिंग से ही ग्रो करता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा लेयरिंग. लेयरिंग क्या होता है? ये कौन सा प्रोसेस है? सो in layering, a young branch is bent towards the ground and covered with the moist soil forming a layer. अब layering में means layer बन जाती है. जैसे ये एक स्टेम थी किसी की, वो we can say नीचे चली गई जमीन में. अब स्टेम हल्की सी थी, है ना, तो बेंड हो गई किसी भी रीजन से और वो जमीन में चली गई. अब जमीन में क्या हो गया? देखो ये स्टेम में क्योंकि इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है सब कुछ, तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो इनको न्यूट्रिशन मिलके एक नया प्लांट यहाँ ग्रो कर लिया. layering होगी. Okay, in layering a young branch is bent towards the ground and covered with the moist soil forming a layer. After some time roots develop from the covered part. इससे क्या होगा कि roots यहाँ पे पूरी developed हो जाएगी इस covered part में. ठीक है. The branch is then cut off through the parent. अब ये branch को ना cut कर देंगे अपने parent से यहाँ से, और अब ये नया plant उग गया अपना. ठीक है, so layering से उग गया ये. So the branch is then cut off from the parent plant and allowed to grow into a new plant. This method is commonly used by the gardeners to develop plants like jasmine, Venus and bougainvilleas. Okay, ये grow करने के लिए हम क्या use करते हैं बेटा? किसकी? Layering की. Okay, ये important है. ये कब use करते हैं? ठीक है, ये कब use करते हैं? Important. Okay. ना इस क्राफ्टिंग. अब क्राफ्टिंग क्या है? लेट्स सी. देखो हमने क्या किया, ये मेरा टूट गया था ऊपर से पौधा, तो मैंने इसको देखो इन दोनों को ना मैंने ज्वाइंट कर दिया इस तरीके से, रैप कर दिया, रैप एंड वेक्स कर दिया, और ये होता है क्राफ्टिंग. सॉरी, नॉट क्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग. इट्स नॉट क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला इज ग्राफ्टिंग. सो ग्राफ्टिंग इज अ कॉमन method used in horticulture to develop a new varieties of ornamental plants and fruit trees. In this method, a bud or cut with a bud of one plant called scion, क्या कहते हैं? Scion, is kept over the cut stem of a rotten plant called stalk. The scions and the stalks are then firmly tied together. ठीक है. अब देखिए दो इसके क्या लिखे हैं. सबसे पहले आप ये इस तरीके से अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है? The care is to be taken that the stalk has an extensive root system under the soil. Next, after some time, the tissues of the stalks and scions join together to form one plant. The stalk supplies the essential nutrient to the scion. So ये आपको चीज समझ में आ गई.
अब देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं इसके। सो एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कौन कौन से होते हैं। सो द प्लांट्स मैच्योर अर्लियर देन दोज प्लांट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। अब ये प्लांट क्या है, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल जो मेथड होते हैं ना वो ज्यादा वी कैन से बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है, देखो हमने देखा है। हाँ ये देखो, ये अच्छे बेटर क्यों होते हैं? बिकॉज सबसे पहले ये इजी होते हैं, फास्ट होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं ये मेथड। दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके ओके, सो दिस इज द थिंग। तो एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या है, लेट्स सी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर्टिफिशियल मेथड के कौन कौन से, इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई गिव स्टार मार्क ऑन दिस। ओके, सबसे पहले plant matures earlier than those plants which are produced by seed. This propagation is used to produce plants that do not have seed. इस यहाँ पे वो भी प्लांट ग्रो कर लेता है जो सीड से नहीं ग्रो कर पाते प्लांट, उसको भी आप इस आर्टिफिशियल मेथड से ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस डिजीजेस फ्री प्लांट। इससे जो प्लांट ग्रो करते हैं ना, डिजीज फ्री प्लांट होते हैं ये, इसमें कोई डिजीज नहीं लग सकती। Next, by this method the plants can be propagate indefinitely without variation. इसमें without variations plants grow करते हैं इससे, ठीक है। अब इसके disadvantage क्या होते हैं, let's see. The plant do not have genetic variations. अब यहाँ पे क्या, कोई genetic variations नहीं होती। जैसे हमने उस वाले में तो देखा था बिल्कुल genetic same plant grow कर रहे थे। Yes or no? अगर हम स्टेम या रूट और वो काट के करेंगे तो जेनेटिकली सेम तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, इसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। सो द प्लांट डू नॉट हैव जेनेटिक वेरिएशन, इसमें क्या जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। ओके ये डिसएडवांटेज है इसका। एज मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस इट मे रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली फ्यू इंडिविजुअल प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है। सो ये दो इसके डिसएडवांटेज हो गए। नाउ वी विल सी अबाउट टिश्यू कल्चर क्या होता है। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? इसमें टिश्यूज से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उसमें कोई लीव स्टेम्स किसी का यूज नहीं हो रहा, उसमें टिश्यूज का यूज हो रहा है। सो लेट्स सी ये क्या है। इन टिश्यू कल्चर मेथड अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एक्स प्लांट इज कट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। देखिए टिप ऑफ द प्लांट से इसके कुछ टिश्यूज को कट करके इस कंटेनर में रख दिया जाता है, और इस कंटेनर में धीरे धीरे करके देखोगे कि वो प्लांट ग्रो करती है, टिश्यूज को करके कट। So the cell of the tissue are separated and kept in a nutrition medium, और ये इस nutrition medium में इसको रखा जाता है और ये grow करते हैं फिर। The cell of the tissue divide rapidly and form a organized cell mass called callus. The callus is transferred to another nutrient medium containing plants hormone. इसमें सेम प्लांट्स हार्मोन्स रहते हैं, जो टिश्यूज जिस प्लांट का आपने कट किया उसी के हार्मोन्स इस प्लांट में रहेंगे। The cell of callus is this nutrient medium divide and differentiate into root and shoot and form a plantlets. Asparagus and Cynthiums and orchids and many other plants grow from this method. Okay, asparagus भी इसी से ही grow करता है। Okay, so asparagus and orchids plants can grow from this method. Now we will see कुछ advantage क्या होते हैं इसके एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लेट्स सी। फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज रैपिड, इजी एंड चीप मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। ये इजी एंड चीप मेथड होता है। ओके, सच प्लांट टेक्स लेस टाइम टू ग्रो, ये ना सच प्लांट कम समय लगाता है ग्रो करने में। दे बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स इजीली, इसमें प्लांट फ्रूट्स एंड फ्लावर इजीली ग्रो कर लेते हैं। The new plant are exact copy of the parent plant. इसमें क्या होता है, एकदम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं और एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो भी प्लांट ग्रो करते हैं उसमें एग्जैक्ट पेरेंट की कॉपी होती है। The parent plant produce a large number of plant in a short period of time. So वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से बहुत सारे प्लांट एकदम से ग्रो कर लिए जाते हैं। ओके, plants like banana, seedless grapes, rose, pineapples and dahlias do not have produced seeds, can only grow with vegetative propagation. So ऐसे प्लांट जो सीड से ग्रो नहीं कर पाते उसको इस मेथड से बेटा ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका रोज है। नेक्स्ट अब कुछ डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स देखते हैं इसके।
फर्स्ट है बेटा, बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट लूज देयर रिप्रोडक्टिव पावर आफ्टर अ न्यू जनरेशन। इसमें इसकी रिप्रोडक्टिव पावर लूज हो जाती है इस प्रोसेस से। नेक्स्ट, ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ फाइट अगेंस्ट डिजीजेस दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन। इसमें क्या है, डिजीजेस से ये इतने अच्छे प्लांट फाइट नहीं कर पाएंगे, इनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट, प्लांट्स बिकम ओवरक्राउडेड एट वन प्लेस एंड फेस लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं होता। तो ये कुछ ऑफकोर्स जिसके एडवांटेज भी होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई मेथड हो या कोई भी चीज हो। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप नोट करके रखिए। आपको कुछ किसी के एडवांटेज पता हो ना पता हो, बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पता होने चाहिए। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देन बाय एक्सप्लेनिंग ऑल दिस अगेन, क्योंकि ये हमने चैप्टर में अभी एक्सप्लेन किया ना, अगर क्वेश्चन आंसर आएगा, explain the difference between we can say write the advantage and disadvantage of vegetative propagation। आप कर नहीं पाओगे, कर लोगे ना। so this is the thing I want from you, okay? Okay, अब we will see sexual reproduction क्या होता है। asexual clear, vegetative propagation clear, now we will see sexual reproduction क्या होता है। okay, as हमें थोड़ी definition से तो पता है कि इसमें मेल gametes and female gametes दोनों होते हैं। okay, so अब let's see the process of reproduction of a new plant are obtained from the seed is called sexual reproduction। जो सीड से रिप्रोडक्शन हो रहा है, इससे पहले जितने भी रिप्रोडक्शन पढ़े उसमें सीड का कोई रोल नहीं है, बीज का कोई रोल नहीं है, इसमें बीज का रोल है। बीज मीन सीड। ओके, इन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। So male and female gametes fuse together to form a zygote। इससे क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट एक जाइगोट फॉर्म करते हैं। The reproductive organ of a plant is in the flower। और reproductive part flower का बेटा कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, फ्लावर में होता है। प्लांट का कोई भी reproductive part फ्लावर में ही होता है। The flower contain male and female reproductive part of the body, plant body। So plant की body में उसके उसी में होता है उसका मेल एंड फीमेल पार्ट। The male and the female gametes are produced separately in the male and female reproductive organ in the plant body। Okay, so आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखो सबसे पहले ये एंथर एंड फिलामेंट, ये स्टेमन के पार्ट है, मतलब ये मेल है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में। और जो पिस्टल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें हमारे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है। तो ये एक चाइना रोज है जिसके बारे में, इसमें एक ऐसा है क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आई, क्लियर? चलिए अब देखते हैं बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कौन से होते हैं। लेट्स सी। सो बाय द नेम वी कैन से बाय मींस टू, यूनि मींस सिंगल। सो द फ्लावर और द प्लांट विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज bisexual। bisexual means जिसमें दोनों हो, मेल एंड फीमेल, this is known as bisexual। the flower or the plant which contain either of the male and female reproductive organ is known as unisexual plant। unisexual plants कौन से होंगे, जिसमें या तो मेल हो या तो फीमेल हो, दोनों नहीं होंगे, इसमें एक ही होगा कोई। that's why their name is unisexual। okay, so bisexual, unisexual is clear। now we will see parts of a flower। flower के कौन कौन से parts होते हैं, let's see। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेमन में कौन से होते हैं, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो फ्लावर में होता है। ठीक है, ईच स्टेमन इज फॉर्म बाय द swollen apical part of anther and along with a slender stakes called the filament। ओके, इसमें एंथर एंड फिलामेंट होते हैं हमारे स्टेमन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इनसाइड द एंथर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। और इस एंथर के अंदर बेटा पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जो कि मेल है। अब पिस्टल है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में। पिस्टल कंटेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और वी कैन से पिस्टल में आपका स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी तीनों चीज होती हैं। द ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म इन द ओव्यूल्स। सो जो एग फॉर्म होता है ना बेटा, वो ओवरी में, ओव्यूल्स में फॉर्म होता है। ठीक है, द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये डेवलप होता है, ओव्यूल ही डेवलप होता है सीड में, और कब डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। लेट अस परफॉर्म। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी आपको दे रखी है, ठीक है, सो यू कैन डू दिस वन। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट, नाउ दिस थिंग इज क्लियर।
Sexual or unisexual is clear. Male reproductive part and female reproductive part is also clear. Okay. Now we will see mechanism of sexual reproduction. किस किस mechanism को follow करके हमारा sexual reproduction होता है? सबसे पहले बेटा pollination. So pollination, fertilization, formation of seed, formation of fruit and germination of seed. ये कुछ methods है. अभी क्या है? Let's see. सबसे पहले pollination. So transfer of pollen grain from anther to stigma. Pollination means stigma से we can say anther से stigma में pollen grains को transfer करना his pollination होता है. Next is fertilization. So union of male gametes with the female gametes to form zygote. अब ये male and female को zygote form होगा. Male and female के fusion से जाइगोट फॉर्म होता है. इट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन. दिस इज थिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन क्या है, सो यू कैन राइट दिस वन. ओके, द वी कैन से अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड. सो डेवलप ऑफ जाइगोट इज नोन एज सीड. जब जाइगोट डेवलप हो जाते हैं, ऑफ कोर्स दे फॉर्म सीड. ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. अब फ्रूट भी डेवलप होता है. सो मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट. अब ओवरी अगर मैच्योर होगी तो वो फ्रूट में डेवलप होती है. एंड लास्ट में जर्मिनेशन ऑफ सीड. जर्मिनेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ यंग प्लांट फ्रॉम द सीड. ओके, नाउ वी विल सी पॉलिनेशन क्या होता है. देखिए पॉलिनेशन के पूरे टाइप्स है. यहां देख पा रहे हो किस किस तरीके से पॉलिनेशन होता है. फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है प्लांट्स में, है ना. फिर डिस्पोजल किस तरीके से होता है प्लांट्स में. ये है पूरा का पूरा जो अभी हमने पढ़ा है, उसी को पूरा अभी हमने कवर करना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किस तरीके से होता है. सो पॉलिनेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ही मतलब है मेल गैमेट से फीमेल गैमेट्स में ट्रांसफर होना. ओके, सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का होना. मेल गैमेट्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज नोन एज पॉलिनेशन. आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ. So this is pollination. There is the first step in the process of seed formation. ये सबसे पहला प्रोसेस है सीड को फॉर्म करने. ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे तभी वो जाएंगे ओवरी में. देन दे फॉर्म सीड विल डेवलप इन दैट पार्ट. ओके, so we will see pollination take place with the help of some external agents such as wind, water, insects, birds, animals. These external agents are known as agents of pollination. कुछ agents भी इन्वॉल्व होते हैं इस pollination के प्रोसेस में, जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. ऑफ कोर्स हवा चलती होगी तब होता होगा, या पानी से, या कोई इंसेक्ट से, या प्लांट्स एनिमल से. तो ये कुछ एजेंट्स होते हैं, इसलिए इनका नाम ही एक्सटर्नल एजेंट्स है पॉलिनेशन के. ओके, अब पॉलिनेशन के भी दो टाइप होते हैं बेटा. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक है क्रॉस पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन में सेल्फ एंड क्रॉस का मतलब क्या है. देखिए सेल्फ मतलब ये होता है ये एक ही होगा उसमें. क्रॉस में मींस दोनों हो सकते हैं. तो ये क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन मींस इन दिस प्रोसेस पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट. या तो देखो उसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, या तो सेम फ्लावर में होगा, या तो किसी दूसरे फ्लावर में भी होगा, बट वो फ्लावर सेम होना चाहिए पहले वाले से. ठीक है, सो ये सेल्फ पॉलिनेशन है. मींस ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों है तो वो सेम फ्लावर में हो गया, तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा. इन दिस प्रोसेस पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बोर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सेम काइंड. अब ये डिफरेंट प्लांट दूसरे प्लांट में जाके हो रहा है. ओके, पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट में जाके वी कैन से सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वो है क्रॉस पॉलिनेशन. सेम फ्लावर तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज, अगर डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये पॉलिनेशन के दो टाइप्स हो गए. अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. कौन कौन से एजेंट्स थे इसके जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते एक से दूसरे फ्लावर में. तो वी कैन से पहला तो हमारा इंसेक्ट्स है. सो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. इंसेक्ट से कैसे होता है लेट्स सी. इंसेक्ट लाइक हनी बी, वॉट्स, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज विजिट फ्लावर फॉर नेक्टर. ऑफ कोर्स बटरफ्लाई वगैरह और वो सब आते हैं, दे वांट फ्लावर के नेक्टर पे, है ना. व्हाइल कलेक्टिंग नेक्टर some pollen grain sticks on the body of the insect. अब क्या उन्होंने नेक्टर इकट्ठा किया, अब कुछ बॉडी पार्ट्स पे उनके पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं. अब वो जिस भी प्लांट पे जाके बैठेंगे उसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे.
So with this insects visit another flower, the pollen grains are brushed off, some of them fall on the stigma. Sweet tea, ostrich, buttercup, sunflower etc are example of flower pollination by insects. So ये कुछ example है बेटा. ये क्या है आपका, ये insects से ही pollinate हो पाते हैं, इनके जो pollen grain है. नेक्स्ट है एनिमल से. एनिमल से कैसे होता है pollination, let's see. So some animals and small animals are pollinate flowers. Bird pollinate flowers are brightly red, yellow or orange in color to attract the birds. Sunbirds and hummingbirds are two large group of birds which pollinate flowers. Okay, so sunbirds and hummingbirds ये mostly ऐसे birds है जो pollination करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट विंड से तो होता है, वो तो आपने खुद ही देखो हवा चलती है, सो पोलन ग्रेन विल ट्रांसफर एनीवेयर लाइक दिस. ओके ओके. सो फ्लावर ऑफ अ व्हीट, rice, maize and grasses are pollinated by wind. Wind pollination flower have following features. कौन कौन से feature होते हैं, let's see. They have usually white in color. They do not produce nectar. They produce small and light pollen grains in a large quantity to be carried away by the wind. So इस वजह से wind से carry हो रहा है. अब water से भी होगा of course. So the example of water pollinated plants are sea grasses. Sea grasses water से ही pollinate हो पाती है. Okay. हाइड्रा एंड वैलिसिया, ये जो प्लांट है बेटा ये आपके वाटर से पॉलिनेट हो पाते हैं. ओके, तो ये आपको समझ में आया. नेक्स्ट वी विल सी फर्टिलाइजेशन क्या होता है प्लांट्स में. लेट्स सी. सो ऑन रीचिंग द स्टिग्मा द पोलन ग्रेन्स ग्रो out into the thin pollen tube. It extends through the style, reaches the ovary and enter the oval. The pollen tubes contain two male gametes, one of which fuse with the female gametes or egg nucleus and form a zygote. अब zygote बनता है इसमें. ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ पे आएंगे पोलन ग्रेन. देखो आया पोलन ग्रेन, यहाँ आया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा में गया स्टाइल में, गया स्टाइल के बाद ओवरी में आया, यहाँ आ गया. You can see. So the process of fusion of male and female gametes is known as fertilization. We know all these things. Okay. Next we will see fruit and seed formation कैसे होता है. Fruit और seed कैसे form होता है. Let's see. The fertilized egg zygotes grow into the embryo. Zygote किसमें grow होगा, embryo में. Embryo has two parts, namely shoots forming called plumings and root forming part is known as radix. ठीक है. So इसमें क्या हो गया, pluming and radicle होता है. The ovary grows into a fruit and other part of a flower fall off. The ovaries develop into seed. तो इस तरीके से ओवरी में से सीड का डेवलपमेंट होता है. ठीक है. हमने अभी ऊपर ही अभी देखा था, है ना, कैसे सीड से कैसे उससे बनते हैं. आप देखते हैं बेटा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा एंड फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है. ये देखो पोलन ग्रेन गए स्टिग्मा में, मेल गैमेट जा रहा है पोलन ग्रेन, देन दे रीचेस हियर एंड हियर इन दिस पार्ट ऑफ ओवरी. Can you see this chart? Important. Okay, so this one is important. So a seed is mature oval that contains the embryo and the stored food. It is enclosed by the seed coat formed of two covering. A fruit is the seed-bearing structure of a flower plant. Actually, it is a ripened ovary of a plant, and seed are mature ovaries of the fruit. Fruits may be fleshy and juicy or dry and hard. Mango, apple and oranges are fleshy and juicy fruits, whereas almonds and walnuts are the dry and hard. तो कुछ फ्रूट होते हैं बहुत फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं. ठीक है. चलिए अब देखते हैं फ्रूट एंड सीड का डिस्पर्सल किस तरीके से होता है. ठीक है. सो आप सीड देखिए, सीड तो किसी भी रीजन से डिस्पोज हो सकता है एक दूसरे से दूसरी जगह, हवा की वजह से, है ना, पानी की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से. ठीक है. तो लेट्स सी. In nature, same kind of plant grow at different places. This happen because seeds are dispersed to different places. Seed क्या होता है, एक प्लांट हर जगह आपको मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसके सीड्स डिस्पर्स हो गए हवा में, और जहां जहां वो गिरे वहां वहां उसका प्लांट उग गया. ठीक है. If all the plant in a particular place start flowering, there would be a several competition for sunlight, water, minerals and space. Of course, एक ही जगह पे अगर बहुत सारे प्लांट्स उग गए तो सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको सनलाइट चाहिए, सबको पानी चाहिए, तो सारे प्लांट्स ग्रो एक साथ एक जगह पे नहीं कर पाते. इसलिए हमें गैप दे दे के हमेशा प्लांट्स उगाते हैं ताकि सबको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, हवा, पानी सब मिल पाए.
As a result, the seed would not grow into healthy plant. इसकी वजह से अगर वो एक ही जगह पे उग जाएंगे तो वो हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं डेवलप कर पाएंगे. Okay, so plant benefited by seed dispersal. Seed dispersal prevent competition between the plants and own seeding for sunlight, water and minerals. It also enables the plant to invade new habitat for wider disturbance. अब देखते हैं नीड ऑफ सीड डिस्पर्सल. नीड क्यों होती है सीड के डिस्पर्सल की? लेट्स सी. Dispersal of seed of different places is essential because it increases the chance of survival of seedling and prevent competition between them. If all the seeds grow at the same place, there would be a several competition among them seedling for the space, sunlight and water and minerals. अगर एक ही जगह पे काफी सारे सीड्स उग जाते हैं तो उनके बीच में फिर कंपटीशन होगा कि किसको कितनी सनलाइट, पानी, सब लोग इजीली ग्रो नहीं कर पाएंगे फिर. ठीक है. सो अब देखते हैं एडवांटेज क्या होता है सीड एंड फ्रूट डिस्पर्सल का. सबसे पहला, एंश्योर दैट द प्लांट आर डिस्पर्स ओवर विद एरियाज, अवॉइड ओवरक्राउडिंग, प्रिवेंट कंपटीशंस among the plants for space, sunlight, water and minerals. अब disadvantage क्या है seed dispersal का? So disadvantage of fruits and seed dispersal is that they may be carried by unsustainable places. They may fall to regenerate. Okay, so ये advantage disadvantage. देखिए ये chapter I know थोड़ा सा lengthy है क्योंकि इसमें हर चीज बहुत अच्छे से explain की हुई है, हर चीज के advantage disadvantage है ना. तो इसलिए अब देखते हैं हवा से कैसे डिस्पर्स होती है सीड्स, पानी से कैसे होते हैं. ठीक है, और कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं वो सारा देखते हैं. देन दिस इज चैप्टर इज ओवर. ओके, सबसे पहले हवा से कैसे होते हैं. सो फ्रूट्स एंड सीड्स स्कैटर्ड बाय द विंड आर स्मॉल एंड लाइट. जो हल्के फुल्के सीड्स वगैरह होते हैं ना वो हवा से डिस्पर्स हो जाते हैं. सो सीड्स of maples and drumsticks have wind of floating in the air for a long distances. Light seeds of grasses, hairy seeds of madder oak, rendale, cotton and hairy fruits of sunflowers are blown so far from the speed of the wind. कुछ plants जो wind से उसके seeds उड़ जाते हैं, जो seeds बहुत हल्के फुल्के होते हैं वो. अब disperse पानी से कैसे होता है? So the seeds, so the fruits and the seeds of aquatic plants, जो aquatic plants के जो seed होते हैं वो of course पानी में disperse होंगे. So the fruits and the seed of aquatic plants like those of water lilies, lotus, coconut float in the surface water. जैसे coconut, lotus वगैरह तो ये तो पानी में ही उगते हैं ना, तो इनके seed पानी में disperse होते हैं. Carried to far places of the water current. Coconut are the fibrous coat with a hard covering. It is carried away with a long distance by the water current without being damaged. Because उसकी hard covering होती है तो वो काफी दूरी तक पानी में जा सकता है. Now we will see dispersed by animal. Animal से कैसे dispersal होता है? Let's see. Seed dispersed by animal have spines or hooks have cling to the bodies of the animals. ये तो हमने भी देखा था ना, जैसे किसी जो ऐसे बर्ड्स है जो जिनकी बॉडी थोड़ी सी हेरी वाली है, स्पाइंस निकले हुए हैं, तो उसमें क्या है, तो सीड चिपक जाते हैं. जैसे बर्ड किसी भी पेड़ पे बैठा, किसी भी प्लांट पे बैठा, उस पे उसके सीड चिपक गए बर्ड के. अब वो बर्ड जहां जहां जाके बैठेगा वहां पे उसके सीड्स गिरते जाएंगे. तो इसकी वजह से इंसेक्ट्स की वजह से भी सीड्स का डिस्पर्सल हो गया. समझे ना कैसे हुआ? ठीक है, सो ये सीड्स की वजह से. अब एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म मींस जैसे एक प्लांट है, अब वो बर्स्ट हुआ, अब उसके अंदर सीड थे, वो सारे के सारे ऐसे हवा में फैल गए, तो वो एक्सप्लोसिव हो गया, वो एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म हो गया ये. ओके, अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड का कैसे होता है. सीड कैसे जर्मिनेट करते हैं देखिए. सो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड. देखिए सीड से कैसे न्यू प्लांट डेवलप होता है. So the scattered seeds needs proper amount of moisture, air, temperature and soils to generate. इसको ना proper sunlight, water चाहिए किसी बीज को grow करने के लिए. देखिए नीचे बीज था, उसको proper देखो radical root आई. अब यहाँ पे क्या है, properly उनको sunlight मिली, water मिला, सब कुछ मिली, so they developed into a new plant. Okay, so देख सकते हैं आप इसमें steps लिखे हुए. सबसे पहले firstly, there is intake of water by the seeds. Second, water activities of enzymes in the seeds. Enzyme converts stored food and soluble form. The soluble food is used to radical and terminates for growth. इसके अंदर ना stored food होता है, पानी होता है जो इनको burst होता है और इसको grow करने में help करता है. देखो इसकी outer covering ना burst हो जाती है, इसके बाद इसमें से plant grow कर लेता है. समझे? So ये है germination का पूरा process. Now I am hoping so this chapter is totally clear to you.
हमने बहुत अच्छे से एक एक चीज देखी है. नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वन, द रिप्रोडक्शन ऑफ बडिंग इज अ फाउंड ऑफ ईस्ट. किसमें होता है बडिंग? ईस्ट में. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्म बाय द बाइनरी फ्यूजन इज 2. 2 होते हैं, बिल्कुल. अब तो मैं सारे क्वेश्चंस अगर आपसे भी पूछे ना, यू कैन गेट द आंसर, क्योंकि हमने सारे हाईलाइट्स कर चुके हैं चैप्टर में, है ना. नेक्स्ट बताइए, थर्ड, प्रेजेंस ऑफ नेक्टर्स एंड कलर्ड पेटल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर दैट आर पॉलिनेटेड बाय. किससे होते हैं? वाटर से, इंसेक्ट से, सॉइल से, विंड से. ऐसे कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, जो कलरफुल, बहुत सारे जिनके कलर्ड पेटल होते हैं, नेक्टर होता है उसमें. बिल्कुल सही, विंड से. ओके, नेक्स्ट, a fruit develop from its part of a flower. It's a fruit develop from its part of a flower. इसको क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं. सो इट इज ओव्यूल. ओके, दिस इज थैलेमस. हाँ, थैलेमस पढ़ा था ना, जो अपने ही पार्ट से दे कैन ग्रो. दिस इज थैलेमस. ओके, सो ये तो हो ही नहीं सकते, इधर तो प्लांट फर्टिलाइज होता है. ओके, दे कैन नॉट बी द आंसर. नेक्स्ट, pistil is the female reproductive part consist of. इसमें क्या होता है? ओवरी होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, तो इसमें ओवरी होता है, स्टाइल होता है एंड स्टिग्मा होता है. ठीक है, तो पिस्टिल में आपका क्या क्या मिलेगा? ओवरी मिलेगा, स्टाइल मिलेगा, एग भी मिलेगा, ओव्यूल्स भी मिलेंगे. तो दिस क्वेश्चन जस्ट मार्क लाइक दिस वन. ओके, so maybe the options, maybe something is missing in this options. ठीक है, maybe इसमें देना चाहिए था कि कौन सा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, सिक्स्थ, the process of fusion of male and female gamete is known as fertilization कहते हैं. Now some Phillips. पहला Phillips, plant produced by vegetative propagations from one plant are all similar. इसमें सेम होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, सेम रहते हैं. नेक्स्ट, वाइन्स एंड ब्रोडीफिरा आर प्रोड्यूस्ड बाय. किससे प्रोड्यूस होते थे? ये देखो, स्टेम से होते थे कि लीफ से कि रूट से? ये देखो, हमने मार्क किया इसमें. आई नो थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है, बट वी कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स. हाँ, ये रहा. ये देखो, किससे हो रहे? लेयरिंग से हो रहे. लेयरिंग ऑफ द सॉइल, है ना, सॉइल की लेयरिंग से दे कैन ग्रो. वी कैन राइट दिस वन, प्रोड्यूस बाय लेयरिंग से. द सीड ऑफ फ्लैशी प्लांट आर डिस्पर्स बाय. जो फ्लैशी प्लांट है वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? ये देखो, अभी हमने देखा जो फ्लैशी प्लांट्स है, ये रे डिस्पर्स बाय. ये तो कॉटन एंड ये वाले प्लांट्स है, कोकोनट. ओके, ये रहा, हो गए, विंड से डिस्पर्स होते हैं. ओके, सो दिस थिंग इज ऑल द थिंग्स वी डिस्कस. नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. एंड लास्ट, ये किससे पॉलिनेशन होता है? ये देखो, ये अभी हमने देखा था, मैंने उसमें हाईलाइट भी किया है, वाटर से, है ना. तो मैंने ऊपर देखा है, मैंने लगा रखा है इसका आंसर. सो वी कैन से वाटर से दे कैन पॉलिनेट. ओके, नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. अब देखो, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे. पहला मुझे बताओ, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? नहीं बता दोगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेज थे कि उसमें वेरिएशन नहीं होता, उसमें इतना ज्यादा उनकी वी कैन से न्यूट्रिशन होता है, उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं. सो ये, अब ये बताओ, why are some seeds have light and hairy? क्यों होते हैं? क्योंकि so that's why they can transfer with the help of plants and animals. ठीक है, ताकि they can do pollination. So that's why they are light and hairy. Next, what is artificial propagation in plants? Artificial propagation क्या थे? क्या थे? कौन कौन से artificial methods हमने पढ़े थे? याद है किसी को? बिल्कुल, ये रहे, देखो, ये रहे, सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड है. ये देखो, ये रहे, टिश्यू ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब आर्टिफिशियल मेथड है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? जिसमें दे कैन यूज द टिश्यू ऑफ दैट प्लांट एंड फ्रॉम द टिश्यूज दे कैन डेवलप अ न्यू प्लांट. ओके, describe advantage of seed dispersal. Seed dispersal are important. With the help of wind, with the help of water, with the help of animals and plants, seed can disperse from one place to another place, and it is very important for the plant species to reproduce themselves. And this is very important for the to maintain a balance in the environment.
by this. Okay, next, why is the reproduction essential for organism? Reproduction is very essential, so that's why they can maintain their species with the help of reproduction. अब कुछ और है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो पूछ लिया ना, अब ये हमने मार्क किया स्टार मार्क, आप बता दोगे इसके, ठीक है। ये इजी होता है, ये टाइम कंज्यूम नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो इसके भी दो मेथड से, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। डिस्क्राइब मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग पता है ना, स्टेम्स को काट के उसको जॉइंट करके कर दिया था ड्राफ्टिंग, तो उसके एडवांटेज भी आप बता दोगे, ठीक है। अब ये डायग्राम आप एक्सप्लेन नहीं करोगे फ्लावर का, बताओ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जिसमें हमने क्या किया था, एक फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साइड में थे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, एंड पोलन ग्रेन वहां पे आता है ओवरी में आके, एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। ओके, नेक्स्ट, व्हाई द फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर क्या है? सो व्हाई आर द व्हाट आर द फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन? कैसे इंसेक्ट्स करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टिक ऑन द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर एंड इन द इंसेक्ट्स उसके सीड्स वहीं पे चिपक जाते हैं उनकी बॉडी पे, एंड बाय दैट दे कैन पॉलिनेट। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज पॉलिनेशन एसेंशियल? पॉलिनेशन बहुत बहुत एसेंशियल है, so that's why the plants can able to make their the variations in that. Okay, अब ये तो आप बता दोगे, नेम वेरियस मेथड्स ऑफ सीड डिस्पोजल ऑफ सीड्स। किस किस तरीके से सीड्स का फ्रूट का डिस्पोजल होता है? विंड से, वाटर से एंड एनिमल से। ओके, और ये भी आप बता दोगे डिस्पोजल बाय एयर किस तरीके से होता है। ओके, क्योंकि ये चैप्टर हमने पूरा अच्छे से कवर किया है, सो आई एम होपिंग सो ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर एंड एवरीथिंग इज क्लियर बाय यू. So that's all about this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.